Students, a very good morning. Boys and girls, I hope everybody is fine, taking care of themselves. We are running in a pandemic situation, so we need to take care of ourselves, our parents, our brothers and sisters. So for everybody of your family, आपके घर के हर लोगों के लिए आपको you have to be healthy. So keep yourself healthy. Obey or follow the rules of the corona, the protocols which you are supposed to do. है ना? Washing your hands, not touching your face and mouth regularly. And I know everybody is doing that. Okay, students. So we were doing lesson 2 plants. हम लोगों ने plants में क्या कर लिया है? We have seen that how it takes its food, photosynthesis. Last class में हम लोगों ने photosynthesis पढ़ा था, है ना? ये हम लोग छोटा सा एक ऑप्शन देके छोटा सा एक पोर्शन बता के आपको छोड़ा गया था कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स मेक्स देयर फूड. लेकिन अगर प्लांट्स को प्रॉपर डाइट ना मिले, जिसको जितनी उसे चाहिए फॉर द ग्रोथ, इफ द प्लांट डज नॉट गेट द कंप्लीट नरिशमेंट व्हाटएवर इट इज नीडेड बाय इट, तो व्हाट विल हैपन टू इट? एक्चुअली द प्लांट्स दैट ग्रो इन अ लो नाइट्रोजन सॉइल, आपके जो मिनरल्स प्लांट्स लेते हैं, एक्चुअली दे आर द सॉल्ट ऑफ नाइट्रोजन. तो अगर कुछ प्लांट्स लो नाइट्रोजन सॉल्ट में या ऐसी जगह ग्रो करते हैं जहां पे द सॉइल लैक्स इन नाइट्रोजन, अगर कोई प्लांट ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं वेयर द सॉइल लैक्स, उसमें लैकिंग है, कमी है सॉइल, नेचुरल सॉइल की, तो वहां के जो प्लांट्स हैं दे डोंट गेट द नरिशमेंट थ्रू द फोटोसिंथेसिस. वहां के प्लांट्स को नरिशमेंट उसके फोटोसिंथेसिस के नहीं मिलता. In that case, they become insectivorous. They catch hold of the insects and they become the insectivorous. और insects में के बॉडी में जो प्रोटीन है, हम लोग आप लोगों ने पढ़ा है ना, फॉर द ग्रोथ वी नीड प्रोटीन, चाहे वो कोई भी एनिमल हो. तो प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड. तो उस एनिमल के, उस इंसेक्ट की बॉडी में जो प्रोटीन है उसको वो अपने नरिशमेंट के लिए यूज कर लेते हैं. एंड दैट इज व्हाई those plants are said to be the insectivorous plants. I am going to share my screen with you people. All of you, be careful regarding the annotations. कोई annotations नहीं होनी चाहिए. Okay, see, यही चीज मैं आपको बताने वाली थी. See, I hope everybody can see the screen. साक्षी कुमारी, आपको स्क्रीन दिख रहा है? बच्चे क्या दिख रहा है स्क्रीन में, बता दो मुझे. What can you see on my screen? Yes, ma'am. What can you see on my screen? Yes, ma'am. क्या दिख रहा है बच्चे? What can you see? Ma'am, strap. Okay, means the book is your class book, textbook is being shown, है ना? Okay, so यहाँ तक हम Yes, sir. had studied here. हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था. Some plants need extra food in addition to what they prepare by photosynthesis. Means some plants needs extra food for the nourishment in addition to what? जो उनके green plants है, you can see the green plants, they are making their food. ये भी green ही है, but जितनी food उनको चाहिए, जितना nourishment उनको चाहिए, उतना उनको नहीं मिलता. Because have a pencil in your hand, all of you. Have a pencil in your hand. These are the plants that grow in poor soil, which lacks in nitrogen salt. Whatever salt they get from the soil, that is nitrogen salt, nitrogen oxides, they get in the mineral form. ये mineral form में लिखते हैं. तो ये वो plants हैं जो that grow in the soil which lacks in nitrogen soil. तो अब ये कहाँ से इनको nitrogen मिलेगा? कहाँ से इनका build-up होगा? So they get this nourishment from the insects. Plants that trap and feed on insects are called insectivores. आप लोगों ने पढ़ा है herbivorous, carnivorous, omnivorous. This is insectivores. Yes. Plants that feed and trap. That trap and feed on insects are called insectivorous plants. Venus flytrap, pitcher plant are the two examples of such plants. They trap insects in their sticky leaves, which are special shaped. यहाँ पे आप देखो, ये जो लीफ है
दे आर स्टिकिंग फ्रॉम इनसाइड, अंदर से स्टिकी है। जैसे ही कोई इंसेक्ट उसके ऊपर घूम रहा होता है, इसके जो लीफ है इट गेट क्लोज लाइक दिस एंड दे गेट द इंसेक्ट गेट ट्रैप्ड इनटू इट। इंसेक्ट उस पत्तों के बीच में ट्रैप्ड हो जाता है, और जब उसे थोड़ी सी भी हवा नहीं मिलती है, दे गेट सफोकेशन एंड द ट्रैप्ड इन द लीफ एंड दे डाई। और जब ये इसी में मर जाता है, द बॉडीज ऑफ दिस इंसेक्ट्स आर देन ब्रोकन, digested and consumed by the plant. And obviously जब बॉडी है, इंसेक्ट है, तो इट हैज गॉट प्रोटीन, तो दे गेट द प्रोटीन फ्रॉम। एक छोटा सा वीडियो मैं देखती हूँ, अगर यहाँ पे है तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। इफ आई गेट दैट, जस्ट अ Okay, मिनट, ma'am. मुझे देखना है। मीनवाइल अगर मुझे मिलता है तो आई जस्ट वांट टू सी विद इट, इफ आई सी no it is not there, no problem, chalo leave it. Leave it. So this is how an insectivorous plants have its food. ये अपना खाना कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, हाउ इट हैपेंस। अच्छा, anybody tell me what is the meaning of reproduction? Raise your hand those who can answer this word. आदित्य ने हाथ उठाए हैं, I can see 2 more 3 more. मानसी केसरी ने हाथ उठाए हैं, नीलेश कुमार नमन ने हाथ उठाया। चलो नीलेश कुमार नमन, मैंने इनसे बहुत कम पूछा है। नीलेश, कैन यू डिफाइन व्हाट इज रिप्रोडक्शन? बोलिए। The process by which a living thing produces more of its own kind is called Very reproduction. good. Yes, it is the absolutely the right answer. The process by which a living thing reproduce more of its own kind, अपनी तरह का और को जन्म देना, reproduction. So all living beings reproduce to maintain their race and number on the earth. जिन्होंने नहीं reproduce किया, वो क्या हो गए? They got. Why do all living things reproduce? They reproduce to maintain their race. उनकी जाति रहे और उनका नंबर बराबर से अर्थ पे रहे। For that all living things grow. आपने पढ़ा है क्लास 4 में शायद, if I remember, what is endangered animal, what are extinct animal? याद है? Okay, the animals which are no more found on the earth are called extinct animals, and the animals which are in danger of getting extinct, ऐसे animals जो कि शायद अगर proper care ना किए जाए, they will get extinct. They are in danger of, that is endangered. So all living things reproduce to maintain their race and number on the earth. सारे living things reproduce करते हैं क्यों? ताकि उनके numbers earth में बने रहें और उनका race continue रहे, है ना। The process by which all living things reproduce of its own kind is called reproduction. Plants reproduce their own kind by two methods. By two methods. First through seeds. सब कोई जानता है, हम बीज बोते हैं, है ना। We sow the seeds and through the seed, हमने पढ़ा है क्लास 4 में भी कि the bud grows from into a flower, flower into a fruit, and fruit bears the seed which gives a birth to a new plant, है ना। बर्ड से फ्लावर का फ्लावर बनता है, फ्लावर से फ्रूट्स बनता है, फ्रूट्स में सीड होता है जो कि नए प्लांट को जन्म देता है ना। So the two methods of reproduction is in plant is first through seeds. बहुत easy है। हाँ, एक है reproduction through seeds, बोलना नहीं है, who is talking? तो reproduction through seeds पहला सभी जानते हैं, हम लोग पेड़ के लिए बीज लेते हैं and we reproduce through seed, है ना। दूसरा reproduce through different parts of plants. किसकी तरफ से आवाज आ रही है? Some sound is coming. Kindly इसको देखो। Those who are unmuted, mute करें please. मैं आपको बोलूंगी फिर आप unmute कर लेना,
Okay, so first through seed they will reproduce, and secondly through different parts of the plant. अच्छा, मुझे ये बताओ कितने लोगों ने ये देखा है कि हम लोग क्या करते हैं, पेड़ के डंठल तोड़ते हैं, उसको लगा देते हैं, वो लग जाता है. Have you seen money plant being reproduced like this? Yes, ma'am. Yes, we have seen this ना. तो ये रिप्रोडक्शन ही हुआ, नए प्लांट का बनना Yes, हुआ ma'am. थ्रू जस्ट कटिंग द स्टेम. ठीक है ना. तो पहला हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स. इट विल टेक अ टाइम सम टाइम, बट आपको इसको जानना बहुत जरूरी है. ओके, रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स. Again, I'm telling somebody is unmuted. I just request you to mute yourself. If you cannot keep yourself quiet, it's better to mute yourself. म्यूट कर लो अपने आप को अगर आपकी तरफ से आवाज कंट्रोल नहीं हो पा रही है तो. ओके, since I'm using my headphone, मेरे पास कान में बहुत तीखी आवाज आ रही है. Okay, so the seeds of the plant usually develop inside the fruit. अभी आपको मैंने पहले ही बताया कि a bud, a flower develops from a bud, bud से develop करता है, and the flower develops into a fruit. और fruit क्या करता है? It bears seed, and this seed develops into a new plant. अक्षत अक्षिता, जहां समझ में नहीं आए पूछो. डोंट गेट टेंस्ड, है ना. आपको मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है तो मुझे बताएं कि मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. जस्ट अ मिनट. हेलो हेलो. ओके, सो जहां आपको आवाज क्लियर नहीं आए आप जरूर बताएं कि मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही है. चलो, अक्षत अक्षिता आपको ही मैंने अनम्यूट किया हुआ है अभी. चलो, एंड साथ में अदिति सिंह अनम्यूटेड है. ध्यान रहे, आवाज नहीं आनी चाहिए उधर से. ठीक है. ओके, सो रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, हाउ इट हैपेंस. आपको मैंने पहले बताया अ फ्लावर डेवलप्स फ्रॉम अ बड. आपने ये क्लास 4 में पढ़ा है, देयर इज नो नीड ऑफ रिपीटेशन. फिर भी मैं बताती हूँ. अ फ्लावर डेवलप्स फ्रॉम अ बड एंड अ फ्रूट इज डेवलप्ड फ्रॉम अ फ्लावर. बड से फूल बनता है, फूल से फल बनता है, एंड द फल एंड द फ्रूट हैज द सीड इनटू इट. सभी जानते हैं, and we have studied about it कि they are one seeded plant fruit, there are multiple seeded fruit, and there are some fruit which doesn't have a seed at all. है ना. 3 तरह के हम लोगों ने फ्रूट्स पढ़े. तो भाई जिनके सीड है वो तो सीड के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कैसे, हाउ. So the seed of plant usually develops inside the fruit. As the fruit ripens, the seeds become mature. कच्चे फलों के सीड से कुछ नहीं होता. जैसे जैसे फल राइपन करता है, पकता है, फल पका हुआ फल होता है, द सीड बिकम मैच्योर. सीड भी है मैच्योर करता है, बड़ा होता है, वेस्क होता है. And the seeds get dispersed through various agents like air, water, insects, human beings. All the seeds that develop on the ground do not grow to form new plants. सारे सीड को जो हम लगाते हैं वो नए पेड़ नहीं बनाते. भाई क्यों नहीं बनाएंगे? भाई सीड है तो नए प्लांट बनाने चाहिए, क्यों नहीं बनाए? कभी ये दिमाग में क्वेश्चन आया कि हम लोगों ने बहुत सारे सीड छिड़के बट सारे सीड से नए प्लांट नहीं बने? तो आप जान के रखें कि सीड को जन्म लेने में, रूट और शूट बनने में या नया प्लांट बनने में, यू नीड दैट सीड नीड्स टू हैव सम कंडीशंस. कुछ फेवरेबल कंडीशंस चाहिए. क्या चाहिए? उस सीड को चाहिए प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर. अंडरलाइन इट. ओनली दो सीड विच गेट फेवरेबल कंडीशन grow to form new plants. See here, last line. वही सीड नया पेड़ को जन्म देता है जिसको कि ये फेवरेबल कंडीशन मिलता है. क्या कंडीशन चाहिए? एयर चाहिए, अप्रोप्रिएट एयर चाहिए. इट नीड्स टू हैव वाटर, इट नीड्स टू हैव सॉइल एंड टेम्परेचर. एक अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए. ओके, अब देखिए कि भाई क्या ऐसा क्या चीज कमी हो जाती है कि वो सीड डेवलप नहीं करता. नीलेश कुमार नमन, मैं आपको ही पढ़ा रही हूँ लेकिन आपका ध्यान कहीं और है. ऐसा क्यों बेटा? नीलेश कुमार नमन, नीलेश कुमार नमन, कैन यू हियर मी? कहाँ है आपका ध्यान? आप कहीं और देख रहे हैं, ऐसा क्यों? नेक्स्ट. तो एक सीड को डेवलप करने के लिए क्या क्या चाहिए? यू नीड टू हैव एयर, वाटर, सॉइल एंड टेम्परेचर. इस चीज को ध्यान रखिए, मैं बार बार बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके लिए. सीड नीड टू हैव एयर, वाटर एंड प्रॉपर अमाउंट ऑफ सॉइल. सी, ये एक सीड है, बीन है, एक बीन सीड है, ये एक बीन सीड है.
राइट नाउ आई डोंट हैव समथिंग, अदरवाइज आई वुड हैव शोन. अभी मैं आपको दिखा रही हूँ एक चीज, देखो. सी, आई हैव गॉट अ बीन सीड इन माय हैंड, है ना. अगर आपके पास काला चना या बीन्स हो या मूंग की दाल हो, खरी मूंग की दाल, you will see that every seed, these seeds have got a hole. अगर आपको भी दिख रहा है तो it has got a hole. We call it micropyle. ठीक है. और ये सीड में दो, ये सीड के ऊपर एक कवर है. देखो मैं उसको कवर को अनकवर कर रही हूँ. इफ यू कैन सी दैट, सी, हमने इसको कवर को हटाया है. ये था उस सीड का कवर, ये है सीड. देखो इस सीड को मैंने अनकवर किया है. कैन यू सी दैट? अक्षत, अक्षिता, आपको दिख रहा है? सी, तो ये सीड था. इस सीड के ऊपर एक कवर है. देखो आज कुछ में कवर लगा हुआ है ना, और कुछ में सीड के कवर को मैंने निकाला है. यानी आपको तीन चीजें याद रखनी है. सीड हैज गॉट अ सीड कवर, जो मैंने अभी निकाला है आधा. इट हैज गॉट अ होल, छोटा सा होल है सीड में. अभी आपको शायद नहीं दिखे, लेकिन दिख भी सकता है. उसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल. ये क्या करता है, वो वाटर को अब्सॉर्ब करता है. उसी सीड के थ्रू, उसी होल के थ्रू वाटर इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड इन अ सीड, एंड इट हैज गॉट टू पार्ट्स. देखो मैंने सीड को दो टुकड़ों में तोड़ा है. मैं सीड को दो, ये एक टुकड़ा है एंड ये उसका कवर जो बच गया, और ये उसका दूसरा टुकड़ा है. सी, अभी सीड को मैं दो टुकड़ों में डाला है. कैन यू सी दिस? अक्षित, अक्षिता, आप लोग अनम्यूटेड है, कम से कम जवाब दें. Yes, ma'am. सी, these are the two parts of the seed. ये दोनों पार्ट्स थे जो जुड़े हुए थे. अब ये इनको तोड़ दिया मैंने, तो ये दो पार्ट में हो गया. कैन यू सी दिस टू पार्ट्स? सबको दिख रहा है? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. ओके, सो मेरे साथ मैं मानसी को भी रखती हूँ. दो चार बच्चों की आवाज आए तो समझ में आए कि सही बच्चे लोग दिख रहे हैं. मानसी अनम्यूट कर लो, सृष्टि अनम्यूट कर लो. ओके, सो दिस इज, so these two parts of the seeds are called cotyledons. ध्यान रहे, आपके सामने बुक है. मैंने अभी अपना बुक को शेयर को बंद किया है आपको बताने के लिए. तो यू आर हैविंग द बुक. सो व्हाट इज दिस? दिस इज द सीड. इट हैज गॉट टू cotyledons. जब तक ये पेड़ में बनता नहीं है, ये सीड जब तक पेड़ बनता नहीं है, पौधा बनता नहीं है, तो जो नया पौधा निकलता है इसके लिए वो फूड प्रोवाइड करता है. आप पहले समझ जान ले क्या पार्ट्स हैं, तब आप इसको बुक में बैठ के साथ पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ पाएंगे. सो दिस इज द cotyledons. ma'am. हाँ बोलो. Ma'am, cotyledons होता है? वही तो बता रही हूँ. These are called the cotyledons. दो सीड के जो दो पार्ट्स हैं, दो cotyledon वाले सीड्स हैं, ये cotyledons कहलाते हैं. एंड दिस वाज द कवर जो उस सीड का निकला है. ये उस प्लांट, उस सीड को कवर करता है. एंड इट हैड गॉट वन होल इन इट, जिसके थ्रू वाटर सीड में इनटेक किया था. अब देखो मैं स्क्रीन को वापस शेयर करती हूँ, शायद आपको समझ में आया कि मैंने क्या पढ़ा बताया. सी, कैन यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द सीड? मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाया है. कैन यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द सीड? टेक सम ग्राम और बीन सीड, सोक देम फॉर 10 to 12 hours. आज आप करके देखें इसको खुद घर में. छोटा सा कटोरी में 8-10 दाने आप चना का ले लें और उसको 10 घंटे फुला दें पानी में. व्हाट विल यू ऑब्जर्व कि जो सीड है वो सोक्ड हो गए और थोड़े बड़े हो गए, सॉफ्ट भी हो गए. एंड इफ यू रिमूव इट फ्रॉम वाटर एंड कीप इट असाइड, किसी कपड़े में बांध के रखेंगे तो इट विल. आपने अंकुरा हुआ चना देखा है? हैव यू सीन द स्प्राउटेड वन? व्हाट इज दैट? दैट इज द बेबी प्लांट. दैट इज द बेबी प्लांट. वो स्प्राउट जो है वो बेबी प्लांट बनता है. आप उसको और कुछ दिन छोड़ दो तो प्लांट बन जाएगा. एक मिनट, मैं 1 मिनट के लिए आपको स्टॉप कर रही हूँ. जस्ट अ मिनट फॉर, तो है ना. सो जो मैं बता रही थी कि अगेन, if you soak that seed for 10 to 12 hours ना, you will see that वो seed जो है वो थोड़े बड़े हो गए हैं. और जो मैंने अभी आपको बताया ना, अगर आपने सीड को स्प्लिट किया, दो टुकड़ों में बांटा, तो जो दो टुकड़े निकलेंगे उनको हम कहते हैं cotyledons. दिख रहा है मानसी? बुक पे दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. You're having the book? Yes. And
एंड दैट इज द सीड कोट. जो कवर मैंने दिखाया था आपको, द कवर जो दिखाया, दैट वाज द सीड कोट. आपने कोट पहना है, वैसे सीड ने भी कोट पहना हुआ है, ठीक है. तो उसको कवर देता है बेबी सीड को. और यू कैन सी द माइक्रोपाइल ओवर हियर. आपको दिख रहा होगा, यू कैन सी दिस माइक्रोपाइल. दिस इज द एंट्री फ्रॉम वेयर दिस वाटर गेट्स इनटू इट, जिससे कि इस सीड के अंदर वाटर जाता है. एंड दीज टू पार्ट्स आर सेड टू बी द कॉटिलेडन्स. जो बेबी प्लांट जब तक बड़ा नहीं होता, जब तक उसको जमीन नहीं मिलती, जब तक उसको सॉइल नहीं मिलता, ये बढ़ता नहीं. तब तक इसको खाना कौन पहुंचाता है? ये छोटा सा बेबी प्लांट. अगर आप लोग स्प्राउट्स खाते हैं तो यू मस्ट हैव सीन दैट स्प्राउट्स में लंबे लंबे धागे निकल की तरह निकलते हैं, है ना. अगर आप उसको वापस सॉइल दे दे तो प्लांट बन सकता है, बन जाता है. ओके, सी. सो दिस इज द बेबी प्लांट. और बेबी प्लांट को खाना कौन दे रहा है? दीज कॉटिलेडन्स. इससे उसको खाना मिल रहा है, ये कॉटिलेडन और ये कॉटिलेडन, ठीक है. और सीड कोट क्या करता है? कवर बनाता है. सो दिस इज द 3 पार्ट्स ऑफ अ सीड. ओके, नो टॉकिंग प्लीज सी दैट देयर इज नो साउंड. ओके, अब देखिए वापस. So observe, now pick one of the seed and observe the structures carefully. We will notice that it has a hole that allows the water to enter into inside it. This hole is called micropyle. कोई problem यहाँ तक? Anybody, is there any problem? No. No, ma'am. Underline this word. The hole is called micropyle. And the seed is covered by an outer layer called seed coat. Inside the seed coat, there are seed leaves called cotyledon. Some plants like pea, gram, beans have 2 cotyledons, whereas wheat, rice, and maize have 1 cotyledon. हर सीड को 2 कॉटिलेडन नहीं होता. ये 2 स्प्लिट नहीं होते. कुछ के सिंगल कॉटिलेडन भी होते हैं, है ना. इनसाइड द सीड लीव देयर इज अ बेबी प्लांट. क्या आपको दिखा बेबी प्लांट? Yes, ma'am. And the baby plant has Yes, tiny ma'am. root and tiny shoot. The cotyledon store food for the baby plant to grow. अब ये cotyledon से क्या हो रहा है? बेबी प्लांट से फूड मिल रहा है. ओके, ग्रोथ ऑफ द प्लांट. नीचे आइए आप. The baby plants start growing into a new plant when it gets appropriate amount of air, water and temperature. अगर आप उसको आपने किसी पानी में उसको फुलाया हुआ है, सोक किया हुआ है, और उसको पानी में ही छोड़ देंगे तो वो सीड सड़ जाएगा. या फिर आपने सॉइल को बीज को फूलने दिया, सोक करने दिया, और उसके बाद उसको फ्रिज में डाल दिया, तो भी स्प्राउट्स नहीं बनेंगे. यानी कि तब एक सीड को ग्रो करने के लिए यू नीड टू हैव द सीड नीड टू हैव राइट टेम्परेचर. आप देखेंगे गर्मी के दिनों में ये स्प्राउट्स बहुत जल्दी बनते हैं क्योंकि टेम्परेचर रहता है ना. जाड़ों के दिनों में इनको बनने में समय लगता है, ठीक है. सो बेबी प्लांट्स ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट when it gets appropriate amount of air, water and temperature. Underline this word. A baby plant starts growing into a new plant when it gets appropriate amount of air, water and temperature. Neither too hot nor too cold. ना टेम्परेचर बहुत ठंडा चाहिए ना बहुत गर्म चाहिए. To start with, cotyledon provide food for the growing plant. अभी आपको बताया था जो cotyledon है वो growing plant को खाना देता है. Later on, the plant starts making its own food with the help of its leaves. लेकिन जैसे प्लांट के लीव्स आ जाते हैं वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं. सीड जर्मिनेशन, आपको पता है सीड को जर्मिनेट करना, पेड़ में बनना. जब सीड ग्रो करता है और डेवलप करता है सीडलिंग में, दैट इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन, है ना. when we know that plant grows from a seed and the process by which seed grows and develops into a seedling is called सीड जर्मिनेशन. आपको दिखेगा यहाँ पे सी एक बीन सीड है, सबको दिख रहा है? एवरीबडी कैन सी दिस? कैन एवरीबडी सी दिस स्क्रीन? यस, दिस इज अ बीन सीड. हमने इसको हल्का फुला के ग्राउंड में दे दिया था, सॉइल में दे दिया था. नाउ सी, यू कैन सी ओवर हियर. Boys and girls, when I have unmuted you people, I just think that you will bear with me. At least you will not talk. Yes, ma'am, I can say. Okay. See, I can see. this is the root. छोटा सा रूट निकला है, उसको सॉइल मिला है, उसको टेम्परेचर मिला है और उसे वाटर मिला है. नाउ देखो ये आपका जो आप घर में जो स्प्राउट्स करते हैं कुछ ऐसा ही होता है ना? Yes, ma'am. Yes, मैंने sprouts. ट्राई किया था चना का. Very good. It's root.
लेकिन अभी तक उसके पत्ते नहीं है, तो ये पेड़ बनेगा कैसे? इसको खाना देगा कौन? नाउ दिस इज द कॉटिलेडन व्हिच इज गिविंग द फूड टू दिस। ये कॉटिलेडन से उसको फूड मिल रहा है ना? अब ये धीरे 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 कॉटिलेडन देखो खत्म हो गया और यहाँ से नया पत्ता निकल के आ गया। अब ये पत्ता आ गया तो इस कॉटिलेडन की जरूरत नहीं है। अब तो पत्ते खुद से खाना बनाएंगे ना? Yes, ma'am. Okay, so this is the seed germination, stages of germination of seed. किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछो मुझसे। किसी को कुछ प्रॉब्लम आया? Did you find any problem? जो unmuted है वो बताइए। No problem. No problem ना? No, ma'am. So these are the different stages of bean seed. ये different stages of bean seed है। Roots निकले, कॉटिलेडन से उस बेबी प्लांट को खाना मिलता रहा, फिर जैसे फर्स्ट स्टेम निकल गया ये कॉटिलेडन्स गिर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं क्योंकि उससे फूड बन चुका है। एंड दिस इज द वे। लेकिन फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स नीड टू हैव फेवरेबल कंडीशन। उसको फेवरेबल कंडीशन चाहिए, तभी वो डेवलप करेगा इनटू अ सीडलिंग। मानसी, आपका ध्यान कहीं और है? मैं बुक पे देख रही थी। को देख रहे थे। अमृत हो जा, अनम्यूट करो अपने आप। अमृत हो जा, अनम्यूट करो अपने आप। Yes, ma'am. ओके, अनम्यूटेड रहेंगे आप। ओके, सो फॉर Okay, ma'am. so for proper germination seeds need to have favorable condition. अब यहाँ पे देखो एक एक्टिविटी है अमृत। Yes, ma'am. आपको देखो यहाँ पे 4 डिशेस रखे हुए हैं, बाकी बच्चे भी ध्यान देंगे। Yes, ma'am. ठीक है ना? Yes, ma'am. अब पढ़ें इसको। What is the activity about? Take some seed of gram or मूंग दाल. Put them separately in 4 glass dishes labeled as A, B, C, D. 4 ग्लासेस में हम लोगों ने कटोरियों में इन सीड को रखा है 4 से 5 दिनों के लिए। ठीक है? नंबर 1 A, keep the seed on moist cotton at room temperature. भींगे हुए कॉटन के ऊपर हम लोगों ने रूट इसको रखा है, बीन सीड्स को। दूसरे डिश में वही बीन सीड्स है लेकिन वाटर नहीं है। तीसरे में वाटर में पूरा डूबा हुआ है। एंड फोर्थ में द डिश, कीप द डिश हैविंग सीड ऑन अ कॉटन इन एन आइस बॉक्स और रेफ्रिजरेटर। कंडीशन समझ में आया आपको? पहले वाले में भींगे हुए कपड़े में रखा गया था, दूसरे वाले में पूरे विदाउट पानी रखा गया, तीसरे वाले में पानी में डुबो के रखा गया है और चौथे वाले में आइस बॉक्स के अंदर रखा गया है। After 4 to 5 days, we will observe that seed present in dishes B, C and D have not germinated. But the seed dish A shows good germination. कोई मुझे बताओ बिना पढ़े क्यों ऐसा हुआ? Ma'am, because B, C and D was the proper temperature and all favorable conditions. Yes, ma'am. B, C, D have not yet appropriate amount of air, water, and temperature. Okay. अमृत हो जा, मुझे बताओ सी वाला डिश, सी, अमृत हो जा, मुझे ये बताइए सी वाले डिश में जो जर्म्स बीन सीड है वो क्यों नहीं जर्मिनेट की? व्हाई? मैम क्योंकि मैम आई कैन से wait, let him give the answer. Why? मानसी, why? मैम जब वो पूरे पानी में था तो वो खत्म हो गया, गल गया मैम। वेरी गुड। ज्यादा पानी मिला, उसे हवा कहाँ मिली? उसे चाहिए था हवा। It need to add water, it need to add air, it need to add soil, and it need to add temperature. उसे पानी मिल गई बहुत ज्यादा, हवा नहीं मिली। Similarly, मैम इसलिए वो नहीं जर्मिनेट किया। बी वाला क्या है? बी के केस में क्या हुआ? अक्षत बताओ, बी के केस में क्यों नहीं जर्मिनेट किया?
अक्षत बोलो। मैम सी। बी। श्रेया चंद्रा बोलो, बी के केस में जर्मिनेशन क्यों नहीं हुआ? मैम क्योंकि उसको मैम एयर नहीं मिला है Ma'am, मैम, can I say? टेम्परेचर ज्यादा मिल गया। चलो श्रेया बताओ, बी के केस में क्या प्रॉब्लम हुआ? श्रेया चंद्रा, कैन यू हियर मी? Ma'am, अनम्यूट can I? करो, अनम्यूट करो, बोलो। मैम आई वांट टू। कौशली बोलो। मैम कितना आंसर? Ma'am, can I say? मैम कैन आई? दीक्षा, will you give the answer? No, Ma'am, ma'am. can I say? Yes, give answer. Who is telling? बोलो, Srishti. बोलो सृष्टि। Ma'am, because seeds do not get appropriate amount of air. नहीं, बी में तो एयर में ही है, बी में Ma'am, वाटर I ही can नहीं say. है, there is no water at all. ये सो कहाँ से हुआ? Yes, ma'am, because seeds Yes, not get in appropriate dish amount B, of in dish water. B, water was lacking. In dish C, air was lacking, and dish D, temperature was lacking. आपने उसको फ्रिज में डाल दिया, अभी बताया गया था. You need to have either warm, it means warmth, hot या cold या boiling नहीं चाहिए. You need to have the warm. So this was the condition due to which the seeds did not germinate. यहाँ दिखा हुआ है, देखो कौन सा कंडीशन मिसिंग है. बी में क्या मिसिंग था? एयर था, वार्म था. मिसिंग था क्या? वाटर. दूसरा में वार्म था, वाटर था. क्या मिसिंग था? एयर. पूरा पानी में डूबा हुआ है. एंड तीसरा में एयर भी है, वाटर भी है. क्या मिसिंग है? टेम्परेचर. वार्मथ नहीं है. So thus we conclude that appropriate amount of water, air and warmth is necessary for the germination of seed. Okay, आज मेरा क्लास, हाँ, अब तो मम्मी। इसके बाद परसों है. मैं बताऊं, आप परसों जर्मिनेशन ऑफ सीड के साथ तैयार रहेंगे. ठीक है, आपकी कॉपी में यू नीड टू हैव दीज, यू नीड टू ड्रॉ दिस जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड यू नीड टू डू दिस एक्टिविटी. इस एक्टिविटी को भी बनाना है आपकी कॉपी में. ठीक है, और बताना है कौन सा कंडीशन मिसिंग है. ओके, Yes, ma'am. डे आफ्टर टुमारो जो क्लास होगी हमारी, उसमें हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, मींस रिप्रोडक्शन थ्रू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. आई होप यू आर और वेरी मच मैम क्लियर. चलें- आज हाँ बोलो, क्या पूछना है बता. मैम वो बीज वाला मैम ट्राई करेंगे. जरूर करेंगे, जरूर करेंगे. यू मस्ट डू, गिव अ ट्राई. आप अगर आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा. ओके, ओके मैम. ये मैम. हम लोग Yes, ma'am. कल परसों वाले क्लास में, वेडनेसडे वाले क्लास में हम लोग ये करेंगे थ्रू डिफरेंट पार्ट्स. Ask what is tiny shoot? Ma'am, it does